All right, hey everyone. I'm hoping that you're all doing great. Welcome all of you to SP Jan profile-based calls planning. First of all, congratulations to all of you. You've made it so far. Do not make it so far only. The idea is to now convert it. It's very very important and it's a golden opportunity, friends. The only caveat is कि आपका इंटरव्यू बाकी लोगों से पहले हो जाएगा. ठीक है. सो अपने को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी. एंड इस प्लान के अंदर द आइडिया इज दैट यू विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ मेंटर्स. Okay, you will be meeting categories of mentors. One, people who've converted SPJAN and did not go to SPJAN, people like me. People who've converted SPJAN, went to SPJAN and graduated from SPJAN. People like Paddy Padmanabha CV is also going to be a key mentor in the program, and he's graduated in the same year as 2018. That was my graduation year also. You will also be meeting people who are first years and second years at SPJAN. For example, Shubham is also going to be a part of the team. Shubham is first years at SP. You'll also be meeting Vinay, who's the second year at SP. So effectively, सारे के सारे categories and also covering the key domains. For example, marketing, finance, business management, information systems. सारे के सारे ताकि आपको relevant questions पूछे जा सकें and you can practice it really really well. But सबसे पहले let me take first off Shubham, I'm hoping that this feels good coming back. It feels like it might be a question पूछ लो, but I'll control my emotions. How does it feel, Shubham, and what inputs would you want to share with all the people? How was the last season like? What was the preparation like, and give us a sense of the entire thing, Shubham. Okay. So hi everyone. Shubham Dudeja this side. So I'm currently first year student at SP Jain for information management, and right now I'm sitting in my class only. As we have our interns going on. Some of my friends are also working on the other side. Formula बना रहे हैं वो काम आएगा कल. So यही चलेगा. Midnight session जैसे ही काम करते हैं यहाँ पे. So congratulations to everyone जो भी shortlist हुआ है, and don't expect कि तुम ही अकेले हो. There are other people working hard towards getting the goal. So डू वेल, यू हैव एन एज. जितना भी है, जितना भी टाइम एक्स्ट्रा मिला है उसको यूटिलाइज करो अच्छे से. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक इट वाज ग्रेट टू बी ऑनेस्ट. लाइक आई गॉट माय शॉर्ट लिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, बट मेरे को था एक बार कैट का रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं देखूंगा क्या करना है. फिर वो परसेंटाइल का देयर वाज एन इशू. लाइक माय परसेंटाइल वाज, आई कैन ओपनली से नाउ 96.99. सो वो होप्स होता है कि आई विल गो टू एबीसी एल सारा का सारा, बट वो फिर पता लगता है कि ओके शॉर्ट लिस्ट आएंगी ही नहीं. Then you start preparing to what you have and make the best out of it. So that is one thing that you have to look forward to. What you have is make the best out of it, the opportunity that you are getting. Since you are getting a profile based shortlist, that means they know you have something in you जो कि तुम्हारा सिर्फ कैट के स्कोर पे बेस्ड नहीं है. इट इज अ फैक्टर बट नॉट जस्ट द ओनली फैक्टर. सो वर्क ऑन दैट एंड बस एस करो इंटरव्यू. Like last year we had multiple group interview sessions. Sudhanshu sir was there, Vinay sir was there. I just had a chat with him. And उसके अलावा there are other people who will take your interviews, individual interviews plus group interviews. So the one thing that makes SP different is they have group interviews in round 1 and round 2. So that is what we call GI1 and GI2. So GI1 is most of your work X and branch specific. Then it goes to GI2, which is more of a character specific and how you align with values at SP and overall as an individual तुम कैसे हो. बिकॉज तुम बोलोगे कि मैं ऐसा हूँ, वहां पे 2 क्वेश्चन के बाद तुम बोलोगे नहीं सर अब तो मैं बुरा बन गया क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है मार्केट की, अब मैं बुरा हूँ, अब मैं पैसे कमाऊंगा, थोड़ी देर बाद सर मैं डोनेशन भी नहीं करूंगा. तो वो एक यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है. सो बिकॉज दे हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म. वो तुमने जब भरा होगा तुम उसको देखोगे, तुमने वहाँ जो लिखा होगा उनको पता है तुम कौन हो, एंड वही जज होता है सेकंड राउंड. बट थिंग इज फर्स्ट राउंड एक हर्डल होती है, वहां तक उसको क्रॉस करना जरूरी है. सो दैट वाज ऑल. सो मैं फर्स्ट राउंड के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं. ऑब्वियसली सुधांशु सर थे. देयर फाइनेंस का एस्पेक्ट था, मार्केटिंग का था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का बहुत लिमिटेड होता है बिकॉज आईटी में जॉब की है अगर तो दे नो कि इनसाइड आउट क्या जॉब किया तुमने, एंड फिर उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं जो क्या आएगा. सो उसका प्रिपरेशन है. सेकंड में मोर ऑफ कैरेक्टर बेस्ड एंड योर सीवी बेस्ड है. तो उसका प्रिपरेशन एज यू क्लियर द फर्स्ट राउंड यू विल गेट टू नो कि सेकंड राउंड में कैसे होगा. एंड देयर माइट बी अ चांस कि इस बार फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों साथ ही हो. Like I think you will be getting your rollout soon of your interview preferences, places that you have filled offline, online, and everything.
एंड देर आर चांसेस कि फर्स्ट राउंड होगा एंड उसी के बाद तुम्हें बता दिया जाएगा ओके यू हैव मेड इट टू सेकंड राउंड, यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड, अभी के अभी GI2 दो, या फिर यू हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड और उसको देखो। सो वो चीज का बिकॉज लास्ट टाइम एज सर टोल्ड कि कैमरा ऑन कर लो, लास्ट टाइम टोटल ऑनलाइन था, सिर्फ GI2 जो था वो ऑफलाइन था, तो मुंबई दिल्ली जो भी तुम्हारी प्रेफरेंस थी वहाँ बुला के। इस बार दे आर प्लानिंग टू मेक इट ऑफलाइन कम्प्लीटली बिकॉज कोविड स्केयर अभी तो नहीं है बट होपफुली आगे भी ना हो। एंड अगर वो होता है तो बोथ राउंड विल बी ऑफलाइन एंड वो एक ही दिन में तुम्हारा हो जाएगा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। उसके बाद सिर्फ रिजल्ट का वेट करना होगा। सो दैट इज वन थिंग कि तुम्हें दिन में 2 इंटरव्यूज एक साथ देने पड़ सकते हैं, तो उसका थोड़ा प्रिपरेशन होगा। रेस्ट सुधांशु सर विल टेक फॉरवर्ड के आगे क्या प्रोसेस है। Yeah. So Shubham, thanks. That was quite, brief at the same time, very comprehensive. Yeah, Omkar, go ahead. I think you have a question. Please go ahead. So, what would be the results? Like, when would be the results coming out? I mean, we will be interviewing, we will be getting, like, we will be scheduling our interviews in February. And I mean, if he says that both of the group discussions and a personal interview will happen in one day, what would be the timeline that will get our results? And should we wait for other colleges' results? And like, that is the stuff. What Okay. would be the timeline of the results? Okay, Omkar, I'll just have one correction. So there are only GIs. So there are two GIs, GI1 and GI2. Both of them are group interviews. Okay. So it's not GD and PI, it's GI and GI, GI1 and GI2. As Shubham pointed out, GI1 is more about your let's say for example तेरा डोमेन ऑपरेशंस है, तुम्हें ऑपरेशंस के लिए कॉल किया है, तो ऑपरेशन स्पेसिफिक डिस्कशन होगा उसके अंदर, तेरे प्रोफाइल स्पेसिफिक डिस्कशंस होंगे, ब्रांच स्पेसिफिक डिस्कशन होगा। GI2 इज मोर ऑफ एन HR डिस्कशन, जहाँ पे बहुत सीनियर प्रोफेसर्स बैठते हैं और वो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस प्राइमरीली फ्रॉम अगेन motivation, expectation, thought process, alignment from a SPJAN standpoint. Correct. Now, I'll pass it on to Shubham. Shubham, give us a sense of what was the uh, timelines last year for results. Results का क्या timeline रहता है? Interviews तो जनवरी में हो जाएंगे. सो सर मार्च जैसे उन्होंने बोला फेब में दे हैव टू बुक अ स्लॉट, दे विल गेट अ टाइमलाइन कि जहाँ पे तुमको स्लॉट बुक करना होगा। सो यू हैव अ शॉर्ट लिस्ट बट देर आर चांसेस कि सबका इंटरव्यू साथ हो, जितने भी है ना। जो भी, हाँ, अबाउट वॉट सम किसी ने पूछा वॉट का, देर इज अ रिटन एबिलिटी टेस्ट दैट हैपेंस ऑन द डे जब तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा होता है, लाइक फर्स्ट राउंड के बाद होता है। तो वो डिपेंड करेगा उसी टाइम पे कि वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सो Correct. वॉट इज समथिंग जो कि फाइनल इवैल्यूएशन में काम आता है। तो GI1 अगर तुम क्वालिफाई कर गए GI2 के लिए तो GI2 से पहले वॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्टली GI2। बिकॉज होता क्या था लास्ट टाइम तक, इट वाज ऑनलाइन देन ऑफलाइन, सो एक गैप था। उसको बिल्डअप करने के लिए दे कुड हैव आस्क्ड कि ओके अपने इनपुट्स दो, कुछ लिख के बताओ लाइक व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बट सिंस अभी एक ही दिन में अगर होपफुली सारा कुछ हो रहा होगा सो दे माइट नॉट आस्क फॉर इट, बट ऐसा नहीं होगा जहां तक मेरे को लगता है होगा व्हाट भी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। Correct. तो वो था। एंड एंड द टाइमलाइन वाज फेब में, फेब में हमने अपने इंटरव्यूज दिए थे, लाइक माइन वाज ऑन 28-29 जैन के आसपास था। मार्च में सीधा रिजल्ट आ गया था। सो Correct. लाइक पहले वो हुआ था, राउंड 1 हुआ था ऑनलाइन, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हुआ था, देन मेरा मार्च के फर्स्ट वीक में ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ था मुंबई, देन मार्च के एंड तक 24-25 ऑफ मार्च तक आई गेस रिजल्ट आ गया था। सो द सो तो ओमकार, टू आंसर क्वेश्चन, अप्लाई सब में करो, वेट सबका करो, जो बेस्ट हाथ में है लेके आगे निकल जाओ। Absolutely. वो And to add to Shubham's point, देख बहुत सिंपल है, और ये जो वैट वाला पॉइंट है बहुत सही शुभम ने बोला। ये वैट हिस्टोरिकली भी था, तो मेरे टाइम पे भी वैट था, मतलब जो फॉर एग्जांपल एक इनिशियली एक राइट अप आपको देना होता है, पर पहले मतलब इफ यू सी 5 to 6 years बैक ये वैट पहले हो जाता था। तो उसका ऑर्डर माइट चेंज और दे माइट डिसाइड कि हो सकता है कि वो वैट नहीं ले, बट वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट कि एक वैट भी हो सकता है, एंड वी हैव टू गेट रेडी फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। ठीक है, दैट इज वन। सेकेंड थिंग, अगर तुम GI1 क्लियर करता है और तुम GI2 में जाता है, और GI2 में भी अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, या यू हैव नॉट सॉर्ट ऑफ रूल्ड आउट समथिंग दैट यू मेंशन्ड, उसको फिर तुम क्रॉस कर रहे हो, अगर उस टाइप के रेड फ्लैग्स नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा क्लियर हो जाता है। तो GI1 एलिमिनेटर होता है, GI1 को अगर क्लियर कर दिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुमने GI2 के अंदर कुछ रेड फ्लैग्स या कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं करे हुए हैं तो। ठीक है, तो अपना थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि GI1 को इफेक्टिवली क्लियर करें,
सो दैट GI2 के अंदर, GI2 में यू जनरली डोंट गेट कि फिनेंस के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं पूछते हैं वहाँ पे GI2 में, या तुम्हें डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं वहाँ पे, तुमसे रिलेटेड, तुम्हारी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एंड देयरफॉर जो HR Q&A हम कर रहे हैं पोस्ट कैट प्रेप के अंदर, सब लोगों ने HR Q&A अभी हम स्टार्ट करेंगे, सब लोग इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज आई थिंक कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ लोगों ने नहीं करा है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो HR Q&A है वो बहुत बहुत क्रूशल रहेगा SP जैन के स्टैंड पॉइंट से, तो उसको बहुत अच्छे से अपने को करना है। एंड उसके बाद उस जो ड्राफ्टेड आंसर है उसको हम रिव्यू भी करेंगे, सो दैट वी आर ऑल्सो सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम आर एंड टू बी एबल टू गेट इन टू दिस कॉन्फिडेंटली। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ all right. Saloni has a question. I'll just read the question to you, Shubham. Saloni is saying we will select slots after CAT-based shortlist, right? यस, वो सबका शॉर्टलिस्ट आएगा, लाइक देयर आर चांसेस जिनको अभी शॉर्टलिस्ट नहीं है उसमें आ जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस एंड एकेडमिक स्कोर एंड होगा सर। अभी फाइनल जो स्लॉट बुकिंग का है वो टाइमलाइन आ जाएगा इनको, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइमलाइन बिकॉज वो हमें भी नहीं बताया जाता था। सो वो जैसे भी होगा जस्ट वेट, तुम बस अपना प्रिपरेशन शुरू करो। अभी एक शॉर्ट लिस्ट है उसी को उठाओ और प्रिपरेशन शुरू कर दो। Perfect. So Can't say effectively, much more about it. so Saloni, we'll keep you posted. So we'll be adding, so जितने भी अपने SP Jan shortlist वाले हैं पोस्ट कैट प्रेप के अंदर, we'll be adding them to a specific group. SP Jan का शुभम लास्ट टाइम हमारा भी एक स्पेसिफिक ग्रुप था अलग से, ठीक है? PCB पावर, हाँ, SPGen PCB पावर। SP जैन पावर स्क्वाड, तो पावर स्क्वाड SP जैन वाला हम फिर से क्रिएट करेंगे। एंड विल कीप पोस्टिंग कि कैसे आपके फॉर एग्जांपल फॉर्म फिलिंग जो होगा, जो फॉर्म बी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ए आपका हो चुका है, फॉर्म बी फिलिंग होगी, स्लॉट फिलिंग जो होगा दैट विल कीप अपडेटिंग ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, सो डोंट वरी, सारी चीजें वहां पे आपकी चलती रहेंगी। एंड ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो ओमकार इज सेइंग कि सर द थिंग इज आई हैव 93.53, verbal at 73.5, other sectionals are above 90, will my interview call get rejected? Shubham? सर क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, इफ दे I हैव अ think, क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन तो देयर आर हाई चांसेस इंटरव्यू कॉल Omkar, रिजेक्ट हो जाएगा। I think we had shared the criteria on the group also. जो ओके, हमने लास्ट चेक किया था that was 75 75 75। या लास्ट टाइम 75 75 75 हाँ, था, इस बार आई एम नॉट श्योर। करेक्ट, तो 75 75 75 था, ओवरऑल पे 85 था। अगर इसके अंदर कुछ भी चेंज है तो वी विल अपडेट यू, ठीक है? बट जो लास्ट टाइम का था दैट इज व्हाट वी आर होल्डिंग ऑन टू एट दिस पॉइंट इन टाइम, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। उस केस में द इंटरव्यूज विल हैपन बट फाइनल कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है। शुभम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस सर, तो इंटरव्यू के लिए आ जाएगा तो मैं हो भी जाएगा, बट वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो वहाँ पे कट कर देंगे कि ओके बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड और समथिंग लाइक दैट, जो भी होगा। या ठीक है। बट तैयारी करते रहो, यू नेवर नो, लाइक चीजें बिकॉज इस बार का आई गेस कैट वाज बिट ऑन द टफर साइड थोड़ा, सो थिंग्स कैन, आई एम नॉट श्योर कुछ होगा कि नहीं होगा। इफ दे हैव अ पॉलिसी कुछ हो रहा है चेंज तो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, बट तैयारी मत रुकना कि या नहीं हो रहा है कुछ। Absolutely. So, Omkar, keep preparing. If there are any changes to this, we'll, as I told you, we'll update you. कुछ भी eligibility wise कुछ change होगा या process wise कुछ change होगा, I am connected with Shubham, I am connected with the AdCom also, SP Jain के अंदर कुछ भी change होगा we'll communicate to you, so don't worry about it. पर तैयारी करते रहो so that अगर let's say probability बन जाती है तो वो convert हम कर पाए, ठीक है? So that is something which is important. ठीक, नाउ वेरी वेरी क्विकली आई एम होपिंग दैट वी आर ऑल क्लियर एज फार एज GI1 एंड GI2 आर कंसर्न, ठीक है? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर लो GI1 GI2 समझ में आ गया ये क्या है, बिकॉज हम GI1 और GI2 इस वाले वीक के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो पोस्ट कैट प्रेप के अपने जो SP जैन के पावर स्क्वाड्स हैं वो क्रिएट करेंगे और उसके अंदर आपके GIs हम कंडक्ट कराना शुरू करेंगे। द प्लान इज ओके, तो GI1 तुम्हारा टेक्निकल वर्क ड्रिवन डोमेन ड्रिवन ज्यादा रहेगा, ठीक है? जैसे तुम फिनेंस से हो तो फिनेंस ड्रिवन रहेगा, मार्केटिंग से थोड़ा मार्केटिंग ड्रिवन रहेगा, करेक्ट? सो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन। उसके अंदर जो हमारे डोमेन सेशंस होंगे फिनेंस के, मार्केटिंग के, दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग टू एवरीबॉडी फॉर एवरीवन, तो वो वाले सेशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है? बाकी दैट इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू प्रिपेयर एंड विल होन with every GI that we'll be doing. GI के अंदर the plan will be very simple. We'll aim at 10 GIs, okay, for the profile based people.
ठीक है, प्रोफाइल वालों के लिए 10 जीआई हम प्लान करेंगे, और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो हैव 20 recorded GIs that will be available. So we are looking at 30 GIs, which should give us a comprehensive sense of how to appear for a GI. And also these GIs will be conducted through different mentors, people who are alums, also people who are part of first and second year at SP Jain as well. So that's the kind of thought process that we are going to go. ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक, के सारे जीआईज अच्छे से अटेंड करने हैं। जिन जीआई में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उसको भी अटेंड करना चाहिए। कई बार हम बाकी लोगों के मिस्टेक्स से भी सीखते हैं, ठीक है, एंड द काइंड ऑफ क्रिटिकल क्रिएचर्स वी आर, हम बाकियों से ही ज्यादा सीखते हैं। अपने वाले में समझ में नहीं आता है कि भाई क्या गलती कर दी, पर दूसरे वाले का पूरा क्लियर दिखाई देता है कि भाई ये तो रन आउट है ना, ये नहीं पहुंचा था क्रीज के अंदर। ठीक है, सो द आइडिया इज कि सारे अटेंड करना। एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, और मैंने शुभम वाले बैच के अंदर भी इनिशियली रिक्वेस्ट किया था, उसके पिछले वाले बैच में भी रिक्वेस्ट किया था, लास्ट मेनी मेनी सीजंस ऑफ पोस्ट प्रेप, ये रिक्वेस्ट मैं इनिशियली करता हूँ कि सारे अटेंड करना, वेदर यू आर पार्टिसिपेटिंग ऑन। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। क्लियर। उसके अलावा जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, डोंट शाई अवे। ऐसा नहीं कि चलो 2 साल पहले देख लेते हैं कि बाकी सब कैसा कर रहे हैं, ये बाकी सबके बेंचमार्क के हिसाब से मैं अपना डिसाइड करूँ। डोंट डू दैट, पार्टिसिपेट। इट्स आवर फोरम, इट्स आल्सो समथिंग दैट वी आर हियर टू हेल्प, एंड वी आर हियर टू हेल्प बिल्ड द स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, वेदर इट इज डोमेन, वेदर इट इज related to graduation, whether it is related to communication, and the entire flow of events that will happen. So that's the process that is going to be. Okay, and we'll keep announcing the schedules also on our group. We'll be adding very very shortly all of you to the postcat prep power squad. ठीक है, so I'm hoping कि सबको समझ में आया होगा। I'm hoping the thought process is absolutely clear. ठीक है, कुछ भी डाउट है प्रोसेस रिलेटेड तो पूछ लो। GI 1 में क्या होता है, GI 2 में क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैंने बता दिया है। और थॉट प्रोसेस हम क्या लेके चलेंगे वो भी बता दिया है। ठीक है, यू विल बी मीटिंग मी, यू विल बी मीटिंग पैडी, यू विल बी मीटिंग शुभम, एंड अ फ्यू मोर पीपल फ्रॉम शुभम्स बैच, a few more people from senior batch also, like Vinay is going to come in, and Paddy you are going to meet, CV Padmanabha, who is an alum of SP Jain, and also he has been he was a part of admission committee also back in time, so understands the process at the back of his hand, and it's going to be absolutely phenomenal. तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए तैयार हो जाइए। ड्यूरेशन ऑफ बोथ जीआईज देखो ओमकार थोड़ा सा टेंटेटिव रहता है, बट आई गिव यू अ सेंस, एंड शुभम यू कैन कंफर्म व्हाट वाज इट लास्ट ईयर। सो जनरली फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो पहला वाला रहेगा वो एनीवेयर बिटवीन लेट्स से 30 to 45 मिनट्स, एंड सिमिलरली दूसरा वाला भी अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स। उनका शुभम व्हाट वाज द नंबर, व्हाट वाज द सेंस लाइक द लास्ट ईयर? सर थोड़ा सा चेंज है, लाइक लास्ट ईयर जो मेरा पैनल था GI 1 का, देयर वर 5 people इन दैट, एंड सबको ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का लगा था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा पहुंच जाता अच्छा, एक है। एंड घंटा ओके। हाँ, लाइक वो यू कैन एक्सपेक्ट देम कि वो सबको 10-10 मिनट एक्चुअली देंगे, तो 50-55 मिनट थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा तो इतना लग जाएगा। ओके, GI 2 का टाइम पता नहीं लगता, एक बार आप अंदर गए फिर आप सीधा बाहर आते हो, आपको टाइम नहीं पता लगेगा। सो इट कैन गो बिटवीन 1 hour, 1 hour 10 minutes, 20 minutes। कई करेक्ट। बार बहुत अच्छा डिस्कशन चल गया तो 1.5 घंटा भी जा सकता है, लाइक मेरे से पहला वाला 1.5 घंटा चला था, मेरा वाला नेट 1 घंटे में पूरा हो गया था। सो दैट टेक्निकली डिपेंड्स कि तुम्हारा डिस्कशन कैसा गया है, तो वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट करना है बस। एब्सोल्युटली। एंड इन फैक्ट शुभम, इफ यू रिमेंबर, हमारे जो पोस्ट कैट प्रेप वाले जीआईज भी होते हैं वो भी काफी लंबा चलता है, बिकॉज हम GI 1 GI 2 हम भी साथ डेढ़ में। घंटा तो 1.5 घंटा। कई बार हम, मेरे को याद है कई बार हमने 10 o'clock स्टार्ट किया है और 1 बजे 1 AM हम खत्म कर रहे हैं। तो कई बार उसके बाद बिकॉज हमारे केस में वो फीडबैक वाला पार्ट भी ऐड हो जाता है ना, क्योंकि हम GI 1 GI 2 करा के ऐसा नहीं बोलेंगे रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, बिकॉज वो फीडबैकिंग भी होती है। तो फीडबैकिंग, क्रॉस फीडबैक भी हुआ था, आई रिमेम्बर। जो अटेंड कर रहे थे एज अ स्पेक्टेटर उनसे बोला था तुम किसको रखोगे किसको निकालोगे, हाँ वो भी किया था तो। ये भी बहुत फन होता है। सो a lot of fun things going to happen. It is one of my favorite processes. So I had thoroughly enjoyed when I had attended SP Jain का GI process. मुझे बहुत यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस लगता है SP Jain का जो है। एंड yeah, we are going to have a lot of fun for sure. ठीक है ना, सौम्या इज सेइंग कि आप कलेश करवाएंगे आपस में, अरे बहुत मजा आएगा। ठीक है,
बहुत ही बहुत मजा मजा उसी में आएगा, मजा उसी में है। सीरियसली बहुत मजा आएगा। ठीक है। Okay, Ayush is saying, sir, I work in the alcohol industry. Will this be an issue in my interviews, particularly at SPJIM? Shubham? आई डोंट थिंक कुछ इशू होगा, बट अपना स्टांस क्लियर रखना, लाइक दे कैन आस्क यू बुरा है, अच्छा है, नहीं है, सिमिलर टू सिगरेट पीना अच्छा है कि नहीं, तुम बताना। अब तुमने अगर फॉर्म में भरा है कि मैं पैसे कमाने पे विश्वास रखता हूँ, तो तुम आप बोलोगे नहीं सर अल्कोहल की दुकान बंद करा दो, अच्छा नहीं है, तो गलत है। तो स्टैंड है कि हाँ बिजनेस है, लोग पीते हैं तो हम देते हैं, वो वाली चीज अगर चल रही है तो इट्स ओके। या नहीं तुम्हारा स्टैंड पॉइंट ही नहीं, बट सर मजबूरी में करना पड़ रहा है, पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्टैंड क्लियर रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। Absolutely. So I think that is very very important. So मतलब अपने आप से वो डिफेंसिव मत हो जाओ, है ना, कि ओ माय गॉड मैं तो, फॉर एग्जांपल अब आईटीसी में जो काम करता है वो तो फिर कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएगा, है ना। सो डोंट गेट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि भाई मैं कैसे करूंगा एटसेट्रा। ठीक है, बढ़िया। सो गाइस, आई एम होपिंग दैट दिस हेल्प्स, एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज, obviously we are always reachable, and we'll be happy to help. Himang is saying, is there any case study based discussion? Himang, केस स्टडी बेस्ड डिस्कशंस कम होते हैं, केस स्टडी बेस्ड डिस्कशंस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ रेफरेंसेस लिए जा सकते हैं। ठीक है, दैट वी विल डील विद व्हाइल वी डू द जीआईस, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। द आइडिया और द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द सेशन वाज टू गिव यू अ सेंस ऑफ कि प्रोसेस होता क्या है, कैसे होगा, GI1 क्या होता है, GI2 क्या होता है, सो दैट इन द नेक्स्ट सेशन वी कैन स्टार्ट विद द ग्रुप इंटरव्यूज। करेक्ट, है ना। तो अचानक से जीआई के अंदर चले जाते तो थोड़ा सा अब्रप्ट लगता है, and therefore getting a sense first is important. Okay, perfect. Shubham, have we missed out on anything or are we done? सर लुक्स गुड फ्रॉम माय एंड, बस अब वो इनको आ रहा है जो भी इनका प्रिपरेशन प्रोसेस शुरू होगा, एंड द एचआर क्वेश्चन जो आपने बोले, हाँ, लाइक उनको अच्छे से कर लेना, वो हर जगह काम आएंगे। एंड ओपनली जीपीटी की हेल्प ले लो, कोई गलत बात नहीं है उसमें, बट वो ही मत लिख देना आज जो जीपीटी ने लिखा, उसको अपने हिसाब से बनाना। सो दैट आई थिंक वो एक एचआर का सर आप वर्कशॉप लेंगे जिसमें बताते हैं कि कैसे फ्रेम करने हैं, correct. तो उसको फॉलो करना। बट वो टेम्पलेट बना लो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो हर इंटरव्यू के हिसाब से चेंज करना है, एंड जितना लेट हो गया उतना खराब होता जाएगा। तो बना लो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आएगा, हर जगह आएगा। Yeah, Megha, go ahead. Yeah, hi sir. Hi Shubham. Actually, I have a doubt. Like, what are the questions regarding like business management in GI1? वेट Like, करो, लाइक आएगा उसका, अभी इतना जल्दी मत okay, सोचो। लाइक जस्ट इफ यू हैव अ वर्क एक्स, उसके बारे में प्रिपेयर करना शुरू करो, देन वो फॉलो अप में आएगा। व्हाट इज बीएम, एंड लर्न अबाउट बीएम, बीएम का कोर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल रखो, देन फॉलो अप में आपको बता देंगे। Yeah. So I'll quickly add into Shubham's point, Megha. For now, don't. So सबसे पहला इंस्टिंक्ट इंसान का होता है बाहर देखो, पर अगर इंटरव्यूज क्रैक करना तो पहले अंदर देखो। ठीक है, मतलब लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, लुक एट योर प्रोफाइल फर्स्ट, अपने आंसर्स को अच्छे से देखो, अच्छे से बनाओ। ठीक है, BM is primarily something that you have not done, so you will not know a lot of things, but you have been with yourself for how many years? yeah, जो भी, 25. हाँ, Yes. whatever that is. So the idea is कि you have been with yourself and therefore you are expected to know yourself, राइट। सो उसके अंदर जो हिकअप्स होंगे वो आपको ज्यादा इश्यूज क्रिएट करेंगे, रादर देन बीएम के अंदर भी एक दो चीजें करो। बीएम के अंदर क्या करना है वो स्पेसिफिक जब हम सेशंस के अंदर जब डिस्कस करेंगे, GI1 आने दो। ठीक है, लेट्स गेट इनटू GI1। वील डिस्कस एंड डिटेल कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगेन, क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस बहुत हद तक प्रोफाइल बेस्ड या जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बनता है ना। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं है कि अच्छा बीएम के लिए क्या क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो मेघा को जो मुझे क्वेश्चन पूछना है, हो सकता है उत्कर्ष को वो क्वेश्चन नहीं पूछूं या काव्यांश को वो क्वेश्चन नहीं पूछूं, सबसे मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। Okay, so actually I have this doubt because last year I got shortlisted for BM and IM both, and I had actually filled the same application form this year also, but I Okay. didn't get call from IM. So I thought like, what is something wrong that I filled in IM? So that's why I'm asking. Like, There is nothing wrong. There is nothing wrong in BM or IM. Just that they believe that your profile is more suited for BM, therefore they have given you a BM call. Okay. okay. So there is nothing wrong in it, मतलब to say that ऐसा भी हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल मुझे लगता है कि ऑप्स इंक्लाइंड है, लेकिन मेरे को मार्केटिंग में कॉल आ गया।
है ना। मेरे साथ ऐसा हो चुका था, क्योंकि सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मैंने जब आपको दो डालने होते हैं ना, मार्केटिंग डालते हो और आप एक और डालते हो, दो स्पेशलाइजेशन आप डालते हो। तो मैंने उसके अंदर मार्केटिंग ऑप्स डाला था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे ऑप्स में आएगा, पर मुझे मार्केटिंग में आ गया था। सो द आइडिया इज इफ दे बिलीव दैट देयर इज अ सर्टेन inclination that they can see in your profile which suits a certain thing better, so they'll give you, there is nothing wrong, right or wrong about it. Okay. Okay. ठीक है। तो one thing that you can also do, Megha, is go to SPJAN and start looking at the curriculum also. तो BM का curriculum देखो, ठीक है, कि Yeah. क्या होता है curriculum में, है ना। This is something which we had discussed in the briefing session also. तो curriculum देखना चालू करो, that also will give you some sense. But beyond that, as Shubham also mentioned, कि अपने प्रोसेस में जो HR Q&A वाला जो पार्ट आएगा ना, उसको बहुत अच्छे से कर लेना, उसके ऊपर काफी हद तक चीजें डिपेंडेंट रहेंगी। ठीक है। Okay. ओके। ऑल राइट, बहुत ही बहुत बढ़िया। ओके चलो, ओके, है ना, बहुत ही बहुत मजा आएगा। शुभम, यू विल बी, हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट यू? शुभम will also be a part of our group, so Soumya, so don't worry, he'll be added to our group. So Shubham will be there, a lot of people from SPJAN, Paddy is going to be there, I am going to be there. So a host of people, mentors who have been there, or who have been, who have been the achievers, who've achieved, who've cracked it, will be there, so that we can get help, support, their guidance as well. ठीक है, बढ़िया। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो ऐसा ऐसा शर्माने वाली बात नहीं है भाई, मैं भी लगभग लगभग तुम्हारे एज ब्रैकेट में, मेरे से पूछ सकते हो जो पूछना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय शुभम। बाय सर, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। एंड हो जाएगा, टेंशन मत लो।